So as we have discussed about concentration yesterday, and you also know that concentration of a solution can be expressed in varieties of a variety of ways. Those few of them which we discussed yesterday, and these are actually given with the title methods of expressing concentration of a solution in your book. This is all these methods are given under this heading, and out of which that we discussed yesterday, percentage. Second, we discussed strength. Third one, molarity. Fourth, molality. Fifth one, mole fraction. And next is parts per million. It is also known as ppm. Parts per million is just like percentage method. In percentage, we find the mass of or volume of any component out of 100. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपको 100 की जगह पर मिलियन फाइंड करना है, तो ppm can be calculated in terms of mass as well as in terms of volume. But generally, actually, this is used for very dilute solutions. Those solutions which are you can say diluted up to a large extent. जैसे sea water में salts की percentage, salts का amount अगर हमें बताना है, concentration बतानी है, और even in you can say sea water में जो dissolved oxygen है उसका अगर हमें percentage बताना है, तो it is actually 5 multiplied by 10 raised to the minus 6 ग्राम के अराउंड होता है. तो इतना उसको डिजिट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये यूज कर लेते हैं कि हम पर मिलियन ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं. तो 5.8 ppm ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन सी वाटर. और वेरियस सॉल्ट्स जो इवन एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे पोल्यूटेंट जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ppm. तो ppm का जो फॉर्मूला अगर हम बनाए, ppm बाय मास, parts per million by mass, it can be calculated by mass of solute over mass of solution multiplied by 10 raised to the power 6. 100 की जगह आपको 10 raised to the power 6 1 million पार्ट यूज करना है. मतलब हम सॉल्यूशन को अगर 1 million ग्राम कंसीडर कर लेते हैं, 10 raised to the power 6 ग्राम, then the amount of solute present in that is named as, or it is expressed as ppm, parts per million. Reflection. So if you want to write the definition, you can write parts per million, the mass of solute in gram, the mass of solute in grams present in 10 raised to the power 6 gram of solution. परसेंटेज में 100 ग्राम कहते हैं, यहाँ पे 10 raised to the power 6 gram of solution. If the amount of solute we need to find, then it is named as ppm by mass. Similarly, ppm by volume can be written as volume of solute over volume of solution multiplied by 10 raised to the power 6. वहाँ हम डिफाइन कर सकते हैं 10 raised to the power 6 मिलीलीटर अगर आपके पास सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट कितने मिलीलीटर है, दैट विल बी इट्स ppm. Actually, ppm is also useful in you can say drinking water जो हमारा हम लोग यूज कर रहे हैं. तो few salts which are very much required for our health, they must be present in water only, because हमें वो कहीं और से available नहीं होते. तो उसमें से एक important salt है फ्लोराइड. फ्लोराइड 1 ppm तक it is very much important for our teeth and bones. But when its concentration increases beyond 1.5 ppm अगर ये हो जाता है, तो it starts mottling our teeth. हमारे जो teeth है वो yellowish से होना start हो जाते हैं. And if it exceeds beyond 2 ppm, then it becomes toxic. So it is very important for environmentalists to check the values of these salts. Beyond a certain extent वो नहीं जाने चाहिए. ठीक है, तो our drinking water must have 1 ppm of fluoride, because it is very much required for health of our bones and teeth. Okay.
Okay, so in this way, this term of expressing concentration is quite important. Now I'm going to write few relationships which you can use while solving numericals. First one is you need to write polarity equation. Polarity equations can be used in different ways. First of all, सपोज आपको एक सोल्यूशन दे दिया कि इसकी मोलारिटी 5 मोलर है, उसका आपने 20 ml लिया और उस सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट कर दिया फर्दर 100 ml तक. अब नए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आपको मोलारिटी फाइंड करनी है. तो यू कैन सिंपली अप्लाई, आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, सिंपल मैथ्स, बट इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग दिस मोलारिटी इक्वेशन व्हिच इज m1 v1 is equal to m2 v2. अब बेटा ये इक्वेशन लिख के आप ब्रैकेट में लिख लो फॉर डाइल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन, चाहे वो एसिड का है, बेस का है, सॉल्ट का है, एनी सॉल्यूशन इफ इट इज आस्क्ड टू डाइल्यूट फर्दर एंड इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट न्यू मोलारिटी, और न्यू मोलारिटी देके आपको वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, you can simply apply this relationship m1 v1 is equal to m2 v2. ये पुरानी वाली molarity and volume है initial, and this is the final volume and molarity. So this is called dilution equation for calculation of molarity. Secondly, if you are mixing two solutions which react with each other, मतलब अगर आप दो reacting solutions mix कर रहे हो different molarities के और आपको फाइनल मोलारिटी सॉल्यूशन की फाइंड करनी, तो इन दैट केस मोलारिटी इक्वेशन चेंजेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट. दिस m1 v1 over n1 equals to m2 v2 over n2. थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यूज होंगे बिकॉज व्हेन टू सॉल्यूशंस रिएक्ट विद ईच अदर दे डू सो इन अ बैलेंस्ड वे. और आपको पता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जब आप लिखते हो तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स दे मे वेरी. जैसे सपोज NaOH when it is treated with HCl acid, तो 1 मोलर में हो जाएगा इक्वेशन बैलेंस, तो दोनों जगह N1 और N2 अब 1 ही होगा, तो उस केस में तो ये इक्वेशन भी अप्लाई हो जाएगी. बट व्हेन यू मिक्स NaOH with sulfuric acid which is H2SO4 which provides 2 hydrogen ions whereas NaOH provides 1 OH, तो वहां पर आपको इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए NaOH को ट्वाइस करना पड़ता है. तो इन दैट केस वी नीड टू मेंशन नंबर ऑफ मोल्स. तो दिस इज व्हाट molarity equation applied when for two reacting solutions. जब आप दो रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो और आप नए उस सॉल्यूशन की आपको मोलारिटी फाइंड करनी है, या एक सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी फाइंड करनी है, यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन. Okay, this equation is useful when we go for titrations in practicals. Na? Last year you didn't perform, but this year you need to perform because of class 12. Practicals will be there, तो हम ये equation हम उसमें use करेंगे. And third equation, ये तो था हमने जब reacting solutions mix किए, जैसे कोई acid और base की reaction है, या कोई oxidizing agent और reducing agent आपने mix किए solution form में. Then how to calculate molarity of other one by knowing the molarity of just one solution. अब अगर हम दो ऐसे solutions mix कर रहे हैं जो आपस में react नहीं करते, for example we have mixed two acids, एक HCl लिया, एक H2SO4 लिया. HCl suppose 1 molarity का था, H2SO4 2 molarity का था, कुछ definite volumes हमने लेके mix कर दिए, and it is asked to calculate the new molarity. Then third equation which is to be applied here is m1 v1 plus m2 v2 is equal to m3 v1 plus v2, क्योंकि total volume जो होगा final volume that will be equal to both of these volume which are combined v1 and v2. Okay, and the new molarity will be m3. So m3 can be calculated by this method. Just this third equation can be applied on mixing two non-reacting solutions.
तो आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के क्लियर हो जाएंगे। नॉन रिएक्टिंग में सेम नेचर वाले सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, आपसे न्यू मोलैरिटी पूछी जाएगी। यहाँ पर दो ऐसे स्पीशीज के सॉल्यूशंस मिक्स होंगे जो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड और बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और आपको क्वेश्चन में इटसेल्फ होगा कि एक की मोलैरिटी गिवन है, दूसरी की फाइंड करनी। तो बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखने के बाद आपके मोलैरिटी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो these three molarity equations can be used in numericals. Okay. Next, one more relationship which is applied when we need to solve numericals or in practicals also. Strength. Otherwise, the strength can be simply calculated by dividing the mass of solute by the volume of solution in liter. But otherwise, strength, अगर आपको molarity given है और strength पूछा गया, then it is simply related as molarity multiplied by molecular mass. जिस solution की आप molarity निकाल रहे हो, उसमें जो solute है, उसके molar mass से उसको multiply कर दो molarity को, you will come to know about the strength. So this is very important relation between strength and molarity, and this is also we are using in practical to find molarity and strength of any particular substance. Now beta, one more term you can find in various reference books, normality. But normality is otherwise deleted by CBSE, but it is it can be asked in certain competitive exams. So thoda sa idea, normality is represented by capital N and it can be calculated by this formula you can mention, number of, अब हम molarity में क्या निकालते हैं बेटा, number of moles से हम find करते हैं, but normality can be calculated by number of gram equivalents of solute over volume of solution multiplied by 1000, because volume we are taking in milliliter. ओके, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज लीटर के साथ कनेक्शन है वॉल्यूम में। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, जैसे हम वहां नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे हैं। अब मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स में मतलब आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास जो आपको यहाँ निकालना है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स? हम ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग द गिवन मास विथ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे आप मोल्स निकालते हो, हाउ यू कैलकुलेट मोल्स? कैन एनीवन टेल? मोल्स अगर हम फाइंड करने हैं, क्वेश्चन में मास गिवन है, तो हम क्या करते हैं? मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। सिंपली अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट अगर हमें फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को फाइंड करने के लिए आपको गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करना पड़ता है इक्विवेलेंट मास से। बस यही डिफरेंस है, मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास यहाँ यूज होता है, और इक्विवेलेंट मास हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास को वैलेंसी से डिवाइड करके। अगर किसी आयन की बात कर रहे हैं, एसिड की बात कर रहे हैं, तो उसकी बेसिसिटी, जैसे HCl है तो बेसिसिटी 1 है, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन 2 है, तो अकॉर्डिंगली that can be calculated, but actually it is not in NCERT syllabus, you can skip this topic. और एक रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का आप याद कर सकते हो, कैपिटल N नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। जैसे कोई एसिड है तो उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास आपको मैंने बताया कि आपको उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी, जो भी सब्सटेंस है, अगर कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट में केटाइन की वैलेंसी क्या है उससे निकलता है, और अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मासेस फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। के मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देते हैं वैलेंसी से या फिर एसिडिटी से या बेसिसिटी से, व्हाटएवर इज द सब्सटेंस अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट we'll go for few numericals in text exercise. If you have books, you can open in text exercises, otherwise I am sharing screen here for those questions. Aman ma'am, please allow me to share screen.
Okay, ma'am. Yes, ma'am, you can. Thank you, ma'am. Yes, beta. First question is, calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 120 gram of carbon tetrachloride. Can anyone tell what to do here? Mass percentage nikalne, simple question. I will not tell the answer or the solution for this. Very simple. Hurry up. How to calculate mass percentage? Mass of solute divided by mass of solution. तो solution आपको इन दोनों के masses को add करना है. 122 ग्राम plus 22 ग्राम 144 ग्राम हो जाएगा total mass of solution. Mass of solute here benzene. Okay. 22 divided by, अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो अगर दोनों का ही यहाँ पे पूछा गया बेटा एक्चुअली तो एक की निकाल लो दूसरे की 100 में से माइनस कर लेना. क्लियर है? इसको करने की जरूरत है? मैम प्लीज अनम्यूट इफ someone wants to say something. Next question number 2, calculate the mole fraction of benzene in solution. ये आप नोट करो क्वेश्चन पहले नोटबुक पे, then we'll discuss on board. I will remove screen after that. Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30%. 30% by mass C6H6 in CCl4. This is the question. Mass percentage is given and it is asked to find mole fraction. Okay. Yes. So सबसे पहले आपको जो कॉन्सेंट्रेशन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में यही है कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन है you need to you can say interpret that statement in a useful manner. आपको उसमें से जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है फर्दर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो आपको उसमें से डिटरमाइन करनी आनी चाहिए. यहाँ क्वेश्चन है 30% बाय मास बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन CCl4. आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. मोल फ्रैक्शन का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, देन यू विल कम टू नो कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए. तो दिस विल बी number of moles of benzene over number of moles of total solution. The solution has these two things. Okay, and you are given with mass percentage. Now can anyone tell how will you calculate number of moles from this mass percentage? आपको mass percentage given है, moles कैसे find करोगे? Hurry up, don't waste time, otherwise I will ask anyone. One minus 0.3. I'm not asking the answer. I'm asking how to find from mass percentage. आंसर नहीं चाहिए मुझे, आंसर आप खुद फाइंड करोगे. आई एम टेलिंग यू द वे टू कैलकुलेट. हरी आप मोल्स ऑफ बेंजीन निकालना है, कैसे निकालेंगे बेटा? एनीवन कैन टेल. एक दूसरे को देखते मत रहा करो. Okay, first of all, what is the formula for calculating number of moles? Given mass over given mass on molecular mass. Molecular mass. अब given mass आपको यहाँ पर directly given नहीं है, but it is given in the form of this statement. 30% by mass of benzene. मतलब mass of benzene कितना है? Mass of benzene is equal to 30 gram and mass of CCl4 is equal to 100 minus 30, 70 ग्राम. ये आपको खुद फाइंड करने पड़ेंगे मासेस, क्योंकि आपको जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है उससे
आपको फाइंड करनी है, इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। तो 30% मास का मतलब होता है कितना परसेंट आपको दिया है, वो 100 में से उतना मास सॉल्यूट का है और बाकी का मास सॉल्वेंट का, ऑब्वियसली बिकॉज द सॉल्यूशन कंटेन्स जस्ट 2 कंपोनेंट। तो 30 ग्राम बेंजीन हो गया, 70 ग्राम आपके पास CCl4 हो गया। तब आपको मास मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप क्या करोगे, NC6H6 will be equal to 30 ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन कितना है, 78, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 70 डिवाइडेड बाय CCl4 का मॉलिक्यूलर मास कार्बन 12 एंड 4 क्लोरीन 35.5, 154. तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। दोनों को आप फ्रैक्शन में फाइंड करके उसके बाद एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लो बेंजीन का, एंड देन दूसरा मोल फ्रैक्शन आपको अगर क्वेश्चन में दोनों के पूछे गए हैं तो 1 माइनस दैट मोल फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is calculate the molarity of each of the following solutions. 30 gram of cobalt nitrate .6H2O in 4.3 liters of solution. It's very simple. Mass of cobalt nitrate is given and 4.3 liter volume of solution is given. Molarity का formula क्या है? Number of moles of solute over volume of solution. यहाँ directly liter में है तो आप volume of solution. यहाँ बेटा वॉल्यूम 4.3 लीटर डायरेक्ट लिख सकते हो, 1000 स्किप कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू राइट दैट फॉर्मूला कि आपने वो 1000 यूज करना है फॉर्मूला में, तो आप 4.3 लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 4300 मिलीलीटर्स यू कैन मेंशन, बट अदरवाइज इट्स बेटर इफ यू यूज दिस टर्म। अब आपको यहाँ पर एक चीज करनी है कि मोलर मास कोबाल्ट नाइट्रेट का निकालना है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास नोट कर लो, 59 होता है। तो उससे आप पूरा कोबाल्ट नाइट्रेट का मास फाइंड करोगे, 6H2O बीच में ऐड करने हैं, टोटल मास क्योंकि हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। उससे आप इस 30 ग्राम को डिवाइड करके उसके बाद आप मोलैरिटी फाइंड करोगे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। नेक्स्ट बी पार्ट, 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन। V1 आपको यहाँ पर एक बेटा डाइल्यूट किया गया, देखो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, इट इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो आपको मोलैरिटी, न्यू वाली मोलैरिटी निकालनी है। तो here molarity equation will be used, M1V1 is equal to M2V2। M1 है आपके पास, this is 0.5 molar and V1 है 30 मिलीलीटर, सॉरी 30, and V2 हमने किया इसको डाइल्यूटेड अप टू 500 मिलीलीटर। अब ये चीज थोड़ा सा देखनी पड़ती है क्वेश्चन में, अगर 500 मिलीलीटर तो यहाँ डाइल्यूटेड 2 लिखा है, समटाइम्स इट इज रिटन एज बाय एडिंग 500 मिलीलीटर वाटर टू इट, तब आपको टोटल वॉल्यूम 500 वाटर और 30 जो सोल्यूशन लिया था इस तरह से करना पड़ेगा, बट हियर इट इज मेंशन्ड डाइल्यूटेड अप टू दिस। ओके, सो हियर वी कैन फाइंड दिस M1 is 0.5 molar and V1 is 30 milliliter, V2 is 500. So we can simply apply molarity equation and we can write as 0.5 multiplied by 30 equal to M2 आपको find करना है and 500. So you can calculate M2 here. Okay. Next question. Question number 4. Calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 2.5 molar aqueous solution. Molality is given 2.5 and volume, mass of solution is given. दो चीजें आपके पास हैं और आपको फाइंड करना है मास ऑफ यूरिया। Yes, we have these three things.
मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, यूरिया का एक सोल्यूशन है, उसकी मोलैलिटी 2.5 मोल्स पर किलोग्राम है, और मास ऑफ सोल्यूशन अगर 2.5 kg बनाना है आपने इतनी मोलैलिटी वाला, आपको कितना यूरिया रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, मास ऑफ समटाइम्स व्हाट स्टूडेंट्स डू, वो ये करते हैं कि 1 kg में इतना मोल्स है तो इसका सीधा मास निकाल लिया, तो 2.5 kg डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। मेथड इज करेक्ट, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 2.5 kg आपको पूरा सॉल्यूशन बनाना है, और मोलैलिटी का मतलब है कि 2.5 मोल ऑफ दिस यूरिया इन 1 kg वाटर, कि आपके पास 1 kg सॉल्यूशन नहीं है, मोलैलिटी का मतलब 1 kg वाटर में आपने इतने मोल्स यूरिया के ऐड किए हुए, तो आपको पहले मास ऑफ दिस सॉल्यूशन यू नीड टू फाइंड, फिर आप यूनिटरी मेथड लगाओगे। तो इस सॉल्यूशन का मास हम कैसे निकालेंगे कि टोटल मास कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास आ गया 1 kg, और आप ग्राम में भी कर सकते हो, 1000 ग्राम लिख सकते हो, एंड मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारा, यूरिया, यूरिया का मास हम निकालेंगे, उसके मोल्स आपको गिवन है 2.5 मोल, तो 2.5 मोल का मास कितना होता है, इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम, तो 60 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल, ये एक मिनट, क्वेश्चन में आई थिंक 0.25 है कि 2.5 है, लेट मी कंफर्म दिस, 0.25 0.2 है ना, ठीक है, मैंने दोनों जगह 2.5 किया, दिस इज 2.5, so this 2.5 को when we multiply with 60 we'll get 15 ग्राम आपके पास मास ऑफ सोल्यूट आ गया, तो आपका टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा बेटा, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन विल बी 1000 plus 15 ग्राम, दैट इज 1015 ग्राम, और आप इसको 1.015 किलोग्राम भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको इस सॉल्यूशन से फाइंड करना है कि 1015 ग्राम अगर आपके पास सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट आपके पास है 15 ग्राम, दे आर आस्किंग 2.5 kg सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होगा, तो सिंपली अप्लाई यूनिटरी मेथड हियर, mass of urea in 1.015 kg is 15 gram. Okay, तो mass of urea in आप इसको ग्राम से कर लो, बेटर होगा, in 2500 ग्राम would be 15 over 1015 multiplied by 2500. In this way you can find out कितना मास आपको रिक्वायर्ड है, कैलकुलेट इट लेटर। ओके, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? थोड़ा सा माइंड में रखना है कि आपको यूनिटरी मेथड डायरेक्ट ही नहीं लगा देना, क्योंकि वो जो मोलैलिटी गिवन है वो 1 kg सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए नहीं, और क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया वो 2.5 kg सॉल्यूशन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202। बेटा हियर आपको गिवन एक ही जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो मास परसेंटेज में है 20% weight by weight of Ki, and it is asked to find molality and mole fraction of Ki, और डेंसिटी आपको गिवन है 1.202। तो व्हाट टू डू फॉर दिस? अब आपको सबसे पहले इसी गिवन कॉन्सेंट्रेशन को ब्रेक करना है, जितनी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो इससे। मास ऑफ Ki, मास ऑफ Ki इज इक्वल टू
What happened? Lokesh, beta, remove your screen. Lokesh, mass of Ki is 20 gram and mass of water is 100 minus 20, that is 80 ग्राम. ये दो चीजें आपके पास आ गई. आपको फाइंड क्या करना है? मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन. तो सबसे पहले अगर हम फाइंड करते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपके पास दोनों की मासेस हैं. यू कैन इजीली फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Ki. ठीक है. और मास ऑफ वाटर के लिए आप इसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो और फिर आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो. अब मोलैलिटी भी आप निकाल सकते हो. आपके पास मास ऑफ वाटर है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट है. तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आप मास ऑफ Ki ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ki मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. कितना आपके पास? वाटर 80 ग्राम. 80 से मल्टीप्लाई करो और साथ में यहाँ पर 1000. ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला. यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ दिस मोलर मास ऑफ Ki. 167 होता है उसका मोलर मास एंड देन दिस इज मास ऑफ Ki एंड यू कैन फाइंड मोलैलिटी. उसके बाद मोलैलिटी जो फाइंड करनी है, यहाँ पर आपको डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी बिकॉज यू हैव द मास ऑफ सॉल्यूशन एज 100 ग्राम. 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है आपके पास, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको डेंसिटी से. तो बाय यूजिंग डेंसिटी, हाउ यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. ओके. मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम. Density is given 1.202 gram per milliliter. Volume can be calculated. Volume is equal to density, mass over density, 100 over 1.20. So in this way you can calculate the volume of solution. और volume of solution जो आपका ये आएगा, ये milliliters में आएगा. इससे आप फिर molarity find कर सकते हैं. Try to solve all these questions which I discussed. एक दो क्वेश्चन में होमवर्क में बैक एक्सरसाइजेस से आज आपको उस पे ग्रुप में डाल दूंगी. ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज. इफ यू फाइंड सम प्रॉब्लम लेट मी नो बाय टुमारो. इफ एनीथिंग यू डिडंट अंडरस्टैंड लेट मी नो. हरी अप.